अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस परिंदे का इम्तिहान बाकी है। हमें लांघना है न सिर्फ समंदर को, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। जिस आसमान को लांघने की हम लोग बात कर रहे हैं वो आपके सामने यहाँ लिखा हुआ है। आप जितने लोग यहाँ क्लास में समझ रहे होंगे मैं किस आसमान की बात कर रहा हूँ। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर UPSC 2023 टारगेट बैच and here full year plan has been written. So first thing we will discuss here how to plan, and one more thing, you all should know what is planning, and here is very important quotation. If you fail to plan, then you are planning to fail. What? If you fail to plan, then you are planning to fail. इसका मतलब क्या है? अगर आप प्लानिंग प्रॉपर तरीके से नहीं बना पाते हैं, यदि आप प्लानिंग नहीं कर पाते हैं सही तरीके से, इसका मतलब आप फेल होने की प्लानिंग कर रहे हैं। और जो हमारा लक्ष्य है वो लक्ष्य क्या है? इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस IAS। ऑलमोस्ट ऑल द एक्सपीरियंस जितने भी हैं सब इसी के लिए प्रयास करते हैं, IAS के लिए। कुछ IPS के लिए करते हैं, कुछ IRS के लिए करते हैं, कुछ IFS के लिए करते हैं। बेसिकली UPSC सिविल सर्विस एग्जाम के थ्रू जितने भी 24 कैडर्स हैं, सर्विसेज हैं जो भी एलोकेट की जाती हैं, उनमें ज़्यादातर का सपना होता है IAS। इसमें आज हम पूरे प्लानिंग की बात करेंगे। तो पहला सीधे पॉइंट पे आते हैं। पहली बात की गई है फिक्स योर डेडलाइन फॉर टारगेट कंप्लीशन। अपना टारगेट कंप्लीट करने के लिए अपनी डेडलाइन फिक्स कीजिए। कैसे करना है आप लोग को? ईयरली प्लान, मंथली प्लान, वीकली प्लान एंड डेली प्लान। फॉर द ईयरली प्लान आप लोग को बगल में स्लाइड दिख रही होगी और उस स्लाइड पे आप लोग को पूरा ईयरली प्लान दिख रहा होगा, जिसमें जुलाई 2022 से लेकर के 28 मई 2023 तक का, जबकि हमारा सिविल सर्विस का प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है, तब तक का हमारा शेड्यूल लिखा हुआ है कि हम इस चैनल के माध्यम से कब कौन कौन सा सब्जेक्ट कंप्लीट कर लेंगे। हमारी पूरी टीम इस टारगेट को कंप्लीट करने के लिए पूरा प्लान बना चुकी है और हम लोग उसके लिए प्रॉपर वे में लग गए हैं। तो आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा होगा। पहला क्या लिखा है? जुलाई 2022। जुलाई में जो अभी ये मंथ चल रहा है जुलाई का, इसमें हम लोग 2 सब्जेक्ट कवर करेंगे, सब्जेक्ट 1 एंड सब्जेक्ट 2। सब्जेक्ट 1 विल बी ज्योग्राफी and subject 2 will be polity, or we can alternate this subject 1 polity, subject 2 geography. And in the August month this will continue. As you all know that these both subjects are vast and entire syllabus is not going to cover in a single month. So that's why we will cover these 2 subjects in the coming 2 months. And after that, subject 3 and subject 4 will start from the September month. And in September month, subject 3 will be environment and subject 4 will be science and tech. After that, you all can note down, or the PDF of this master plan, yearly master plan, will be given in the description box, and from where you can download. First of all, understand what is this. In the September, environment subject 3 and science and tech in subject 4. In the October month, we will move on our subject 5, that will be economy, and subject 6, that will be history. So in this way, the core parts of the civil service prelims exam UPSC will be covered in these 6 subjects. Subject 1 polity, subject 2 geography, subject 3 environment, subject 4 science and tech, subject 5 economy and subject 6 history. So in this way we will cover our entire subject, major chunk of the syllabus till November. As I can see our plan, we can see here till November we can complete our plan. After November, what will we do? In December,
we will discuss about the miscellaneous subjects. What are the miscellaneous subjects? In the miscellaneous subjects, as you all know, there will be essay part, and after that internal security, disaster management, all these things which are majorly discussed for the mains exam, we will discuss in after November. We will discuss in December, January and February. In these 3 months we will discuss these 3 subjects. So miscellaneous subjects will be discussed in December, January and February. What will we do after February? So here is the major part. What is major part? Means revision. For any exam, if you don't revise your entire content, your entire syllabus, then it means you are planning to fail. Sorry, here is something wrong. If you fail to plan, then you are planning to fail. Sorry, you are planning to fail. And here, so as you all can see, yearly plan and monthly plan, then weekly and daily plan. I'm not going to discuss here weekly and daily plan because it will be according to you, all of you. And one more thing I want to tell you, in weekly plan, please strict on your target. आपको वीकली प्लान में अपने टारगेट को फिक्स कर लेना है कि मुझे इतने से इतने सिलेबस को कंप्लीट करना है अपने वीक में. बट इन डेली प्लान नो स्ट्रिक्ट टारगेट. इन डेली प्लान नो स्ट्रिक्ट टारगेट. प्लीज़ कीप इन माइंड. डेली प्लान में आप फ्लेक्सिबल रहेंगे तो ही आप थ्रू आउट द ईयर अपने आप को मोटिवेटेड रख पाएंगे. ये जो जर्नी है हमारी बहुत ही शानदार भी है, बहुत ही नर्वस वाली भी है. इसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं. तो उस उतार चढ़ाव को हम डेली प्लान में अपने फ्लेक्सिबल रखेंगे. हो सकता है कभी किसी दिन आपका पढ़ने का मन न करें, लेकिन आपने टारगेट फिक्स कर रखा है और आप पूरा जब नहीं कर पाएंगे अपना टारगेट तो आप लोग डिमोटिवेट हो जाएंगे. इसलिए डिमोटिवेशन से बचने के लिए, अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए इसको स्ट्रिक्ट नहीं रखना है और वीकली प्लान को हम लोग को स्ट्रिक्ट रखना है. आफ्टर डैट ये हो गई प्लानिंग के बाद. अब जब हमने ये लिखा है, ये क्या लिख दिया भाई, IS इक्वल टू IS, ये क्या है? It means there must not be no plan B. कोई प्लान बी हमारा नहीं होना चाहिए. What is plan B? IS नहीं हुआ PCS बन जाएंगे, PCS नहीं हुआ तो दरोगा बन जाएंगे, दरोगा नहीं हुआ तो क्लर्क बन जाएंगे. No, these kinds of mentality should not be there in your mind. Are you clear? IS means IS equal to IS. अगर आपने इसको इससे तौल के रखा है तभी आपका सपना पूरा होगा. यदि आपने इसको किसी भी प्लान बी से अगर कंपेयर करके रखा है देन यू आर नॉट इन द लिस्ट. और शायद ये बात कुछ लोग को बुरी भी लग सकती है कि पहले ही दिन ऐसा ही बात बोली जा रही है. यस, 12 लाख लोग फॉर्म डालते हैं, उनमें से 500-600 लोग का सिलेक्शन होता है. दिस इज़ द रीज़न कि लोग प्लान बी बना के बैठ जाते हैं डे 1 से. हियर्स नो प्लान बी. क्लियर बात. वी हैव इंटायर ईयर प्लान एंड वी आर गोइंग टू स्ट्रिक्टली फोकस ऑन दैट. नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, all of you here and some of you are in class 10, 12th and after graduation, क्योंकि आफ्टर ग्रेजुएशन ही हम लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं इस एग्ज़ाम में. बट कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि बहुत अच्छी बात है कि क्लास 10 से ही उनका माइंडसेट हो जाता है. अगर वो भी देख रहे होंगे तो वो इस बात को समझ पाएंगे, या जो ग्रेजुएट हैं वो भी सबके लिए है. क्या है वो बात कि जब हम लोग क्लास 10th में होते हैं, क्लास 12th में होते हैं, तो हम लोग का पूरा फोकस होता है सिलेबस ले आना, सिलेबस का प्रिंट आउट ले आना और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखना, उसके अकॉर्डिंग एग्जाम की प्रिपरेशन करना. जब आप एक बोर्ड लेवल की एग्जाम की तैयारी में इतनी छोटी सी बातों का ध्यान रखते हैं तो इतनी बड़े एग्जाम की जब आप तैयारी कर रहे हैं, मैं जब बोल रहा हूँ इतने बड़े एग्जाम की तैयारी का, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है दिस इज द टफेस्ट एग्जाम ऑफ द इंडियन सर्विस. भारत में जितनी भी सर्विसेज हैं, जितनी भी सेवाएं हैं, उनमें जो टफेस्ट एग्जाम माना जाता है वो माना जाता है यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम. एंड इन द वर्ल्ड दिस इज द सेकेंड टफेस्ट एग्जाम.
The first one is French. French civil service exam is on the first rank टफ के मामले में, क्योंकि दिस इज द प्रोसेस फॉर 1 ईयर, ये पूरा 1 साल का प्रोसेस है। बट फ्रेंच सिविल सर्विस का जो एग्ज़ाम होता है वो पूरे 2 साल का प्रोसेस होता है, और उसका सिलेबस भी माना जाता है कि थोड़ा सा इससे लेंदी माना जाता है। हियर व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक, सिलेबस और नोटिफिकेशन। किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी हो, चाहे वो छोटा एग्ज़ाम हो चाहे बड़ा एग्ज़ाम हो, कैसा भी एग्ज़ाम हो, उसकी तैयारी में ये 2 चीज़ें कभी भी छूटनी नहीं चाहिए। फर्स्ट सिलेबस एंड सेकंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। सिलेबस आप लोग कैसे कवर करेंगे? सिलेबस के लिए नोटिफिकेशन हर साल यूपीएससी जारी करता है। यूपीएससी हर साल नोटिफिकेशन जारी करता है, जैसे 2023 का भी नोटिफिकेशन आ चुका है, उसका भी लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप लोग वहाँ से जा करके 2023 का जो नोटिफिकेशन है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। उस नोटिफिकेशन में पूरा डिटेल नोटिफिकेशन होता है, उसमें सारे इंपॉर्टेंट डेट से लेकर के ये सिलेबस वाला पार्ट भी कवर किया जाता है। और मेरी एक सजेशन है कि आप लोग प्लीज़ सिलेबस को लाइन बाय लाइन रीड करेंगे, उसमें एक भी वर्ड आपसे छूटना नहीं चाहिए, कुछ भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। सिलेबस पूरा रीड करने के बाद हम उठाएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में हम एक एक क्वेश्चन को रीड करके देख लेंगे कि वो सिलेबस के किस किस पार्ट से आया है, और जिस पार्ट से आया है पूछने का तरीका क्या है, क्वेश्चन पूछने का तरीका है। जब हम क्वेश्चन पूछने के तरीके को समझ जाएंगे तब हम इस पूरे एग्जाम के पैटर्न को समझ जाएंगे, और जब हम एग्जाम के पैटर्न को समझ जाएंगे, जब हम अपने सामने आने वाले दुश्मन को समझ जाएंगे, उसका क्या स्ट्रेटजी उसको समझ जाएंगे, तो उस पर विजय पाना कोई बड़ी बात नहीं होती है। और इसी के साथ लास्ट में मैं आप लोग को बस ये बोलना चाहूँगा, इफ़ आई कैन रन आई विल रन, इफ़ आई कांट रन आई विल वॉक, इफ़ आई कांट वॉक आई विल क्रॉल, बट I will never stop. जय हिंद।